بہت بلیسنگ حاصل کرے گا. تو روح القدس کے تعلق سے آئیے میرے ساتھ خدا کے کلام میں سے نکالیے روح القدس کی سیریل میں جو آج کا سرمن ہوگا پیراکلیٹ، مددگار، ہیلپر. تو یہ ہمارا آج کا سرمن کا سبجیکٹ ہے اور روح القدس کی سیریل میں یہ پہلا سرمن میں ڈیلیور کروں گا. تو میرے ساتھ حوالہ نکالیے خداوند کے کلام میں سے پیدائش کی کتاب پہلا باب اور اس کی پہلی آیت. خداوند کے کلام میں سے پیدائش پہلا باب اس کی پہلی آیت. اور خدا نے ابتدا میں زمین آسمان کو پیدا کیا اور زمین ویران اور سنسان تھی اور گہروں کے اوپر اندھیرا تھا اور خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی. ایک حوالہ میرے ساتھ نکالیے. ریفرنس یوحنا کی انجیل 14واں باب، یوحنا کی انجیل 14واں باب اور اس کی 16ویں اور 17ویں آیت. خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے اور میں باپ سے درخواست کروں گا تو وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا کہ ابد تک تمہارے ساتھ رہے، یعنی روح حق جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی کیونکہ نہ اسے دیکھتی نہ جانتی ہے. تم اسے جانتے ہو کیونکہ وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے، تمہارے اندر ہوگا. خداوند کے پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو. جماعت بولے آمین. آئیے روح القدس کو زوردار تالیوں سے ویلکم کیجئے. پریز گاڈ. ہاللویا ہاللویا. خداوند کی برکت ہو. شکریہ سر. بیٹھ جائیں. روح القدس جو ہمیں دیا گیا ہے اور یہ روح القدس جو ہے یہ زندگیوں کے اندر کام کرتا ہے اور 3 دور گزرے ہیں دنیا کے اندر. پہلا دور جو تھا وہ باپ کا، یہوہ خدا کا. خدا بنی اسرائیل سے ہم کلام ہوتا اور ڈائریکٹ جو تھا وہ بنی اسرائیل سے باتیں کرتا تھا خدا. اور اس کے بعد نئے اہنامہ میں کرائسٹ خدا کا بیٹا یسوع مسیح دنیا کے اندر آیا اور پھر یسوع مسیح کا دور سٹارٹ ہوا. اور اس کے بعد پھر آج کا جو دور ہے، آج کا جو زمانہ گزر رہا ہے، یہ ہولی اسپرٹ کا ہے. ہاللویا. تو یہ جو ہولی اسپرٹ کا دور، روح القدس کا دور، آج کا زمانہ جو ہے یہ روح القدس موو کر رہا ہے. اور یہ روح القدس جو ہے ہمیں زور دیتا ہے. اور خداوند کے کلام کے اندر جو آج تعلیم دینے جا رہا ہوں، پونیما ایک لفظ ہے. تو پونیما گرافی کے تعلق سے علم الروح القدس کی تعلیم جو آپ تک پہنچے گی روح القدس کے تعلق سے. گریک لینگویج کا ایک لفظ ہے پونیما، جس کا مطلب ہے اسپرٹ، ونڈ، ہوا، فورس، یعنی روح، ہوا، قوت. یہ روح القدس کا جو ہے اس سے تشبیہ دیا جاتا ہے. تو گریک میں روحا یعنی اردو میں روح، ہوا اور پھر قوت سے شو کیا گیا ہے روح القدس کو. تو دنیا کے جو اسکالر ہیں، سیمنری کے اندر جو ٹیچنگ دی جاتی ہے وہ قوت کے تعلق سے کہ روح القدس قوت بخشتا ہے. مگر میں جو آپ کے بتانے جا رہا ہوں، روح القدس قوت تو دیتا ہے مگر وہ شخصیت ہے. شخصیت یعنی جیسے کرائسٹ شخصیت ہے، اسی طرح روح القدس ایک شخصیت ہے. تو اس سے اس کو ونڈ یعنی ہوا سے تشبیہ دیا گیا ہے. جیسے ہوا، یہ جو ہوا پوری دنیا کے اندر موو کر رہی ہے، امریکہ کے اندر بھی، یہاں پر بھی، پوری دنیا کے اندر ہوا موو کرتی ہے مگر اسے دیکھ نہیں سکتے، اسے محسوس کیا جا سکتا ہے، اس کے شور کو سنا جا سکتا ہے. تو یہ جو ونڈ ہے، ہوا، جسمانی باڈی جو ہے یہ ہوا کے ذریعہ سے زندہ ہے، ورنہ ہم زندہ نہیں رہ سکتے. یہ ہوا جو ہے ہمیں زندہ رکھتی ہے، یہ پھیپھڑوں کے اندر جاتی ہے تو ہم سانس لیتے ہیں. تو اگر ہوا دنیا کے اندر ختم ہو جائے تو پھر ہر انسان کی ڈیتھ ہو جائے.
इसी तरह रूल कुदस जिसे विंड कहा गया, हवा से तशबीह दिया गया है, ये रूल कुदस के जरिए से मैं और आप रूहानी शख्स रूल कुदस के जरिए से जिंदा है। हालेलुया। रूह के बगैर, इसलिए बाइबल लिखे जो जिस्म से पैदा हुआ है जिस्म है, और जो रूह से पैदा हुआ है रूह है। हालेलुया। जो जिस्म से पैदा हुआ है क्या है? जिस्म। और जो रूह कुदस से पैदा हुआ है, बाइबल लिखे हवा जिधर चाहती है जाती है, जहां पर उसे जाना होता है मूव करती हवा। इसी तरह रूह कुदस भी मूव करता पूरी दुनिया के अंदर, जहां चाहता है चला जाता है। और ये रूह कुदस को कोई जान नहीं सकता ये किधर से आया है, किधर को जा रहा है। ये हवा विंड से इसको तशबीह दिया गया, पनीमा को, रूह कुदस को। ये रूह कुदस जो है ये भाई मूव करता है। और आप देखिए कि जिंदगियों के अंदर किसको, यहां पर जैसे 5 लोग इस कुर्सियों पे बैठे हैं सामने, तो किसको नए सिरे से पैदा कर दे, किसको ना करे। ये रूह कुदस का काम है। रूह लिखा कि हवा जिधर चाहती है जाती है, तू नहीं जानता मगर उसकी आवाज को सुनता है। इसी तरह रूह कुदस कहां मूव करके आ रहा है, कहां निजात का काम कर रहा है, कहां को नहीं जा रहा। ये रूह कुदस हवा की तरह मूव करता है। और पनीमा जो लफ्ज है इसका मतलब है कि हवा, विंड, रूह कुदस। और लिखा है कि जो रूह से पैदा हुआ है, बोलिए रूह है। तो जैसे एक बच्चा पैदा होता है, तो बच्चा जब पैदा होता है तो फिर माँ जो है उसकी फीड का ख्याल रखती है, माँ बाप उसके खाने का उसका ध्यान करते हैं कि इसको लेकर चलना है, उसके कद का, उसका वेट का माँ बाप ही ध्यान रखता है, वो हम लोग नहीं ध्यान रखेंगे, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी है, माँ बाप की ही जिम्मेदारी होती है कि एक बच्चे को क्या करें, उसकी खुराक का, उसकी डाइट का ख्याल करें, और फिर उसके कद का, इसको कहां पर लेकर जाना है। हाँ, दूसरा बंदा मशवरा दे सकता है, मगर जिम्मेदारी जो होती है वो पेरेंट्स की होती है, माँ बाप की, कि इस बच्चे को कैसे डाइट देनी है, कितनी डाइट देनी है, कितनी खुराक देनी है। इसी तरह रूह कुदस से जो पैदा हुए हैं, रूह कुदस को पता है हमारा कितना वेट है, कहां तक हमें लेकर जाना है। रूह कुदस को कितना जाना आपने, कितना जानते हैं, कितनी आपको समझ है रूह कुदस की। ये रूह कुदस जो है ये भाइयों नए सिरे से हमें पैदा करता है। हालेलुया। जैसे खुदा ने आदम और हवा को बनाया, आदम को खुदा ने बनाया, यहोवा खुदा ने मिट्टी से बनाया, मगर नया जो इंसान है वो क्राइस्ट ने अपने खून से हमें नया रिक्रिएट किया, हमें नया इंसान बनाया। ये खुदा के बेटे यीशु ने बनाया। और ये जो पनीमा लफ्ज है, रूह कुदस, होली स्पिरिट, ये भाइयों बहनों, ये जो रूह कुदस है ये हमें जोर देता है, ये हमें कुव्वत देता है, हमें बोलना सिखाता है। और अगर यहां पर आप मौजूद हैं, मैं भी मौजूद हूं, आप भी मौजूद हैं, तो ये रूह कुदस के जरिए से है। हालेलुया। वरना आप यहां ना होते, ये रूह कुदस ही है जिसने आपको नया बनाया है, क्योंकि रूह कुदस से पैदा हुए, इसलिए खुदा की हजूरी में खुदावन की वर्शिप करते हैं। और रूह का काम क्या होता है? रूह कुदस का काम यह है कि वो हमें मसीह की शक्ल पर ढाल रहा है दुनिया के अंदर। हालेलुया। और खुदा के नाम को जलाल दे रहा है। ये रूह कुदस का काम, रूह कुदस की वर्किंग है। और रूह कुदस को कहा गया मददगार, दूसरा मददगार। रूह कुदस को क्या कहा गया? दूसरा मददगार। तो ये रूह कुदस को दूसरा मददगार कहा गया है। तो पहला मददगार कौन सा है? वो क्राइस्ट, खुदा का बेटा यीशु मसीह। रूह कुदस ये मददगार है, हेल्पर है, तसल्ली देता है और सलाहकार है, मशीर है, मशवरा देने वाला, एडवोकेट, वकील, शफायत करने वाला। ये रूह कुदस के मैनी है।
तो पैराक्लीट जो है लफ्ज यहां पर लिखा हुआ पैराक्लीट, इसका मतलब भाइयों बहनों पैराक्लीट मददगार, ये इंग्लिश का लफ्ज है मगर बाज लोग इसे ग्रीक में लेते हैं और असल में ये लफ्ज जो फ्रेंच लैंग्वेज से आया है पैराक्लीट। और ये जो पैराक्लीट लफ्ज है इसका मतलब है मददगार। इसका क्या मतलब है? हेल्पर। और जब हम इसे हेल्पर कहेंगे, कंफर्टर एक लफ्ज है, कंफर्टेड तसल्ली देने वाला, काउंसलर मशवरा देने वाला, एडवोकेट वकील, और फिर इंटरसेसर, एडवाइजर, प्रोटेक्टर, फिर स्ट्रेंथर, ये सब ग्रीक से लफ्ज लिया गया है। ये इसका एक लफ्ज है पैराक्लिटोस। क्या लफ्ज है? पैराक्लिटोस। तो पैराक्लिटोस के अंदर ये सारे मैनी आएंगे, यानी पैराक्लीट भी आएगा, हेल्पर भी आएगा, कंफर्टर भी आएगा, काउंसलर भी आएगा, और फिर एडवोकेट, इंटरसेसर, एडवाइजर, प्रोटेक्टर, स्ट्रेंथर, हालेलुया, ये सब रूह कुदस के नामों के अंदर आएगा। तो जब हम कहेंगे पैराक्लीट, पैराक्लीट का मतलब है मददगार। पैराक्लीट क्या का मतलब है? हेल्पर, मदद करने वाला, मददगार। मगर जब हम ग्रीक के अंदर लैंग्वेज के अंदर इसे देखेंगे, पैराक्लिटोस के अंदर देखेंगे, तो ये सारे मायने आएंगे, पैराक्लीट, हेल्पर, कंफर्टर, काउंसलर, एडवोकेट, इंटरसेसर, फिर एडवाइजर, प्रोटेक्टर, स्ट्रेंथर, ये सब पैराक्लिटोस के अंदर आएंगे। तो जब कोई बोलेगा पैराक्लीट तो आप क्या बोलेंगे? मददगार। पैराक्लीट बोलिए। तो जहां पर पैराक्लिटोस कहेंगे तो फिर क्या लफ्ज आएगा? कंफर्टर, काउंसलर, एडवोकेट, उर्दू में मददगार, तसल्ली देने वाला, सलाहकार, मशवरा देने वाला, एडवोकेट, वकील, शफायत करने वाला, इंटरसेसर भी एक लफ्ज है, वो शफायत करता है। तो ये सब मायनी जो है ये भाइयों रूह कुदस के बारे में आपको बताते हैं कि ये रूह कुदस जो है वो हमारा मददगार है, तसल्ली देने वाला है, सलाहकार है, मशवरा देने वाला, एडवोकेट। और जैसे वकील जो होता है वो भाइयों जब आप लीगल टर्म के अंदर यूज करते हैं, जाते हैं वहां पर अदालत के अंदर, तो आपके साथ एक वकील होता है जो आपकी तरफ से बातचीत करता। इसी तरह रूह कुदस क्या करता है? ये भाइयों हमारे लिए वकील भी है मगर ये दूसरा मददगार है। और एक लफ्ज आया है एनदर, ग्रीक के अंदर एनदर एक लफ्ज आता है ग्रीक लैंग्वेज के अंदर, पैराक्लीट, पैराक्लिटोस, एनदर लैंग्वेज की जुबान का, सुनिए। और उसका मतलब है कि दूसरा मददगार, यानी इसका मतलब जो है एनदर, एक तो मतलब होता है कि दो शख्स हों तो दोनों डिफरेंट शख्स के होंगे, ये दोनों चेंज होंगे, यानी दूसरा पहले से थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा। मगर ये जो ग्रीक लैंग्वेज से लफ्ज आया है होली स्पिरिट के लिए, वो ये आया है कि पहले की तरह का दूसरा मददगार, पहले की तरह का, जैसे पहला है उसी तरह का दूसरा, यानी पहला जो है वो क्राइस्ट, खुदा का बेटा यीशु मसीह, हमारा मददगार, हमारा हेल्पर, कंफर्टर, काउंसलर, एडवोकेट, इंटरसेसर, एडवाइजर, प्रोटेक्टर्स, ये पहला मददगार जो है वो क्राइस्ट, खुदा का बेटा यीशु मसीह। मगर उसी की तरह का होली स्पिरिट, हालेलुया, हालेलुया। आइए जोरदार तालियां खुदावंद के जलाल के लिए। यानी जो पहला मददगार है उसी की तरह का सेम रूह कुदस, होली स्पिरिट, हालेलुया, मददगार, एडवोकेट, काउंसलर, तसल्ली देने वाला। क्योंकि यीशु मसीह ने, खुदा का बेटे ने जब दुनिया में आया तो भाइयों हमारा मददगार होकर आया, हमें बंदरों से छुड़ाया, मौत के खतरात से छुड़ाया। और फिर खुदावंद के कलाम में लिखा है कि जब पतरस पानी पर चल रहा था तो डूबने लगा। क्या हुआ? पतरस पानी पर चलता हुआ डूबने लगा तो मददगार को पुकारने लगा, चलाने लगा, कहने लगा मेरे मददगार क्राइस्ट यीशु मसीह मुझे बचा। यीशु मसीह ने उसका हाथ पकड़ के उसे बचा लिया। ये पहला मददगार। इसी तरह रूह कुदस भी मददगार, हेल्पर है। और भाइयों रूह कुदस को कभी पुकारा,
कभी दुआ के अंदर उसे पुकारा, ऐ रूह कुदस मेरी मदद कर? नहीं पुकारा। पुकारा कभी रूह कुदस? अपने हेल्पर को, कंफर्टर को, काउंसलर को, एडवोकेट को, इंटरसेसर को, एडवाइजर को, प्रोटेक्टर को कभी आपने पुकारा? क्योंकि यीशु मसीह लिखा है कि हमारा अजीम मशीर क्या है? अजीम मशीर यशाया की किताब के अंदर लिखा है, पढ़ सकते हैं। इसी तरह रूह कुदस क्या है? अजीम मशीर, यानी हमारा मशीर है, एडवोकेट है, इंटरसेसर है, शफायत करने वाला है। तो ये दूसरा मददगार जो है वो रूह कुदस, इसके लिए लफ्ज ए नजर आया। जैसा पहला मददगार उसी का तरह का सेम होली स्पिरिट हमारा मददगार, हेल्पर, जो हमें बचाता है, छुड़ाता है, हमें संभालता है। ये भाइयों बहनों, ये जो जोर हमारी जिंदगियों के अंदर है, ये होली स्पिरिट का है। हालेलुया। लिहाजा ये रूह कुदस जो है हमारी जिंदगियों में काम करता और हमारी जिंदगियों में कलाम के गहरे भेद खोलता है। इसलिए बाइबल में लिखा है दुनिया इसे नहीं जानती, ना जान सकती है रूह कुदस को। दुनिया रूह कुदस को नहीं जानती, ना जानेगी। लिखा है कि तुम जानते हो, इसलिए वो तुम्हारे अंदर है, तुम्हारी जिंदगियों के अंदर है, तुम्हारे करीब है, तुम्हारे अंदर है। दुनिया रूह कुदस को नहीं जान सकती। क्यों नहीं जानती रूह कुदस को? ना जान सकती है। क्यों नहीं? क्योंकि खुदावंद के कलाम के अंदर सुनिए लिखा दुनिया रूह कुदस को नहीं जान सकती, क्योंकि वो खुदा के बेटे को नहीं जानती, पहले मददगार को। हाँ, वो ये जान गई है, थोड़ा सा इस बात का इकरार करती है कि खुदा का बेटा आया है, मगर मानने के लिए तैयार नहीं है। दुनिया ये जान तो रही है कि खुदा का बेटा दुनिया के अंदर आया, मगर वो उसे मानने के लिए एग्री नहीं। सुनिए जो जुमला कहने लगा हूं, सुनिए। जो रूह कुदस को, क्राइस्ट को जानेगा, दुनिया नहीं जान सकती, मगर जो लिखा है कि रूह कुदस को यानी यीशु मसीह को जानेगा, तो फिर लिखा है जो रूह कुदस को जानेगा, जो रूह कुदस को जान जाए, रूह कुदस को मान लेगा, लिखा है वो होली स्पिरिट को भी मान लेगा। हालेलुया। ये शर्त है, कंडीशन है। जो क्राइस्ट को अपना शख्सी निजात देना कबूल करेगा, तो फिर रूह कुदस को भी वो जान जाएगा। आमीन। लिहाजा क्राइस्ट को जानेगा तो देन रूह कुदस को जान सकता है, वरना नहीं। इसलिए बाइबल के अंदर यहां पर लिखा है, और मैं बाप से दरखास्त करूंगा वो तुम्हें दूसरा मददगार दे बख्शे, जो अब तक तुम्हारे साथ रहे, यानी रूह हक, जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती, क्योंकि ना उसे देखती ना जानती है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ है, तुम्हारे अंदर है। हालेलुया। दुनिया नहीं जान सकती। हाँ, जब क्राइस्ट को जानेगी तो फिर रूह कुदस को भी जान जाएगी। अगर क्राइस्ट को, खुदा के बेटे यीशु को ना जानेगी, तो फिर रूह कुदस को भी, पाकरू को नहीं जान सकती। इसलिए पाकरू दूसरा मददगार, हेल्पर, सलाहकार, मशीर है, मशवरा देने वाला, एडवोकेट है, वकील है, इंटरसेशन करता है, यानी शफायत करता है। यह रूह कुदस का काम है। इसलिए बाइबल के अंदर सुनिए, खुदा के कलाम के अंदर खुदा का बंदा दाऊद कहता है ज़बूरों के अंदर, वो कहता है खुदा यतीम का मददगार है। हालेलुया। ये पुराने अहनामा के अंदर आपको खुदा के कलाम में, ज़बूर की किताब में लिखा है, खुदा यतीम का मददगार। माँ बाप छोड़ दे मगर खुदा आपको नहीं छोड़ता। हालेलुया। इसी तरह दुनिया के अंदर हर चीज आपको छोड़ सकती है, मगर रूह कुदस लिखा है जो अब तक तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया। जो अब तक हमारे साथ रहने के लिए आया है, रूह कुदस ने भाई अब तक हमारे साथ रहना है। लिहाजा ये मददगार, ये पोनीमा स्पिरिट है, विंड है, फोर्स है, हमें कुव्वत देती, ताकत देती, और ये इसके जरिए से हम जिंदा हैं रूहानी तौर पर। इसके जरिए से मैं और आप जिंदा हैं, जिंदगी हासिल करते हैं, जिंदगी पा जाते हैं। लिहाजा हमें खुदावंद की बात करनी, खुदावंद की प्रशंसा करनी, खुदावंद की सताइश करनी है। और इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैं जाता हूं, क्या करूं? तुम्हारे लिए क्या करूंगा? मददगार भेजूंगा। अगर मैं ना जाऊंगा तो मददगार भी नहीं आने का। ये देखिए, अगर मैं ना जाऊंगा तो मददगार भी नहीं वो आएगा, रूह कुदस, पाकरू, होली स्पिरिट। मैं जाऊंगा तो फिर बाप से दरखास्त करूंगा। ये देखिए, बाप से दरखास्त मतलब दुआ करूंगा।
फिर कहा मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा, मैं वो मददगार तुम्हें भेजूंगा। लिहाजा पहला मददगार जिसने हमारी खातिर जान दी मर गया, फिर लिखा है जिंदा हुआ, और फिर लिखा आसमानों पर खुदा की दाहिनी तरफ जा बैठा, और लिखा है हमारे लिए क्या करता है, शफायत करता है। सबसे पहले जो काम किया, क्या किया, रूह कुदस को हमारे लिए भेजा। आइए खुदावंद के जलाल की इज्जत है। ये पहला मददगार जो क्राइस्ट है, उसने हमारे लिए सबसे पहले जब आसमानों पर गया है जिंदा होकर, सबसे पहले जो दुआ की है, मनाजात शफायत की, ए बाप इनको रूह कुदस दे दे। लिखा 120 की जमात पर लिखा क्या हुआ, रूह कुदस नाज़िल हुआ। तो सुनिए, भेद सुनिए, रूह कुदस उस पर नाज़िल होगा जिस पर यीशु मसीह का लहू लगा होगा। हालेलुया। क्राइस्ट का लहू, जो लोग यीशु मसीह को कबूल करते हैं, रूह कुदस उनकी जिंदगी में आएगा, दूसरों की जिंदगी के अंदर नहीं आएगा। लिहाजा रूह कुदस पनीमा, होली स्पिरिट, विंड से जिसे तस्वीर दिया गया, फोर्स से, कुव्वत से तस्वीर दिया गया है, जो हमारा मददगार, तसल्ली देने वाला, सलाहकार, मशीर है, मशवरा देने वाला, एडवोकेट, शफायत करने वाला। लिहाजा ये दुआओं से आया है, दुआ के जरिए से आया है, क्राइस्ट की दुआ से, यीशु मसीह की दुआ से क्या हुआ है, रूह कुदस नाज़िल हुआ है। और सुनिए जो मैं बात करने जा रहा हूं, खुदावंद के कलाम में ज़बूर 110 जाकर पढ़ सकते हैं घर के अंदर। ज़बूर 110 के अंदर क्या लिखा है, सुनिए, खुदावंद के कलाम के अंदर ज़बूर 110 के अंदर लिखा है, यहोवा ने मेरे खुदा से कहा कि तू मेरी दाहिनी तरफ बैठ, मेरी तरफ दाहिनी तरफ। यहोवा ने मेरे खुदा से कहा कि तू मेरे कहां बैठ, दाहिनी तरफ बैठ, मैं तेरे दुश्मनों को तेरे पांव की चौकी बना दूंगा। हालेलुया। लिखा है जब क्राइस्ट आसमानों पर गया तो फिर बाप ने कहा, लिखा है यहोवा ने खुदावन से कहा, यानी बाप ने क्राइस्ट से कहा कि तू मेरी दाहिनी तरफ बैठ, किबरिया की तरफ जा बैठा, मैं तेरे दुश्मनों को पांव की चौकी बनाऊंगा। और फिर पहली जो शफायत यीशु मसीह ने की, रूह कुदस को भेजा। रूह कुदस को भेजने का मकसद के पांव, दुश्मन को पांव की चौकी बनाए। और लिखा कि यीशु मसीह जब वहां पे फाते हुआ, आसमानों पर गया, तो फिर कलीसिया के लिए दुआ की, रूह कुदस के ताल्लुक से, मददगार के ताल्लुक से, ऐ बाप कलीसिया पर रूह कुदस नाज़िल कर दे, ताकि कलीसिया जो है दुश्मन को पांव की चौकी बनाए। हालेलुया। दुश्मन को देड़े, दुश्मन को मारे, दुश्मन की फोर्सेस को तबाह करे। और ये रूह कुदस आया है दुश्मन को भगाने के लिए। आइए रूह कुदस को जोरदार तालियों से वेलकम कीजिए, जो हमारी जिंदगियों में आता है। शैतानी कुत्ते भागती है, बदरूहें भागती है, शैतान खौफ खाता है, क्योंकि रूह कुदस दिया गया है। और पहली जो दुआ की गई है, यीशु मसीह ने भेजा। लिखा अगर मैं ना जाऊंगा तो दूसरा मददगार भी तुम्हारे पास नहीं आने का। लिहाजा यीशु मसीह ने जो पहला काम किया, क्या किया, दुआ की। लिखा शफायत उठाई, मददगार भेजा। लिखा 120 की जमात पर रूह कुदस नाज़िल हुआ। और यह रूह कुदस जो है, लिखा 120 की जमात पे जब नाज़िल हुआ तो लिखा पतरस ने जब कलाम किया तो लिखा 5000 लोगों ने यीशु मसीह को कबूल किया। हालेलुया, हालेलुया। तो लिखा है कि यीशु मसीह ने कहा ये मददगार आएगा तो तुम्हें क्या करेगा, मेरी गवाही देगा। वो अपने से कुछ नहीं कहेगा, मेरी गवाही देगा, मेरे मुतालिक बताएगा। और जैसे हमारी रूह हमारे अंदर की बातें जानती, इसी तरह रूह कुदस ये खुदा का रूह है, ये खुदा के गहरे भेद हम पर आ करता है। हालेलुया। खुदा की तय की बातें, खुदा के कलाम की गहरी बातें, मकाशवात, रेवलेशन, वो नाज़िल करता है। ये खुदा के अंदर जो बातें हैं, इसलिए लिखा है रूह, यानी अपनी रूह के सिवा कोई दूसरा बंदा अपने अंदर की बातें नहीं जानता। तो ये खुदा का रूह खुदा की तय की बातें लाकर एक ईमानदारों की जिंदगी में डालता है। हालेलुया, हालेलुया। और फिर हम रूह कुदस से भर जाते हैं, हम खुदावंद की प्रशंसा करते हैं, खुदावंद की सताइश करते हैं। इसलिए बाइबल में लिखा है, खुदावंद के कलाम के अंदर रूह कुदस के ताल्लुक से, उसके नामों के ताल्लुक से लिखा है पाक रूह, रूह हक, सच्चाई का रूह, खुदावंद का रूह, फिर लिखा है मसीह का रूह, फिर लिखा है कि फजल का रूह, मना जातों का रूह, जिंदगी का रूह, अजली रूह। हालेलुया,
हालेलुया। फिर लिखा जलाली रूह, ये सब रूह कुदस के ताल्लुक से। ये भाइयों हमारी जिंदगियों में आता है, हमें जोर देता है, हमें कुव्वत देता है। और फिर इसलिए बाइबल के अंदर खुदावंद के कलाम के अंदर लिखा है, हबशी खोजा लिखा है जा रहा था वापस, और लिखा है कि फिलिप्पस को रूह कुदस ने गाइड किया। रूह कुदस उसे उठाकर, लिखा है एक जगह पर वो कलाम सुना रहा था, तो रूह कुदस उसे गाइड किया, उसने कहा निकल, और लिखा वहां से गायब हो गया, और फौरन लिखा हबशी खोजा के रथ के साथ हो लिया। ये रूह कुदस का काम है, हमें उठाकर कहीं भी ले जाए। हालेलुया। यूहन्ना को तो भाइयों आसमानों पर ले जाता था रूह कुदस। आइए खुदावंद की जलाल के लिए 11 आकाशवात तुझने दिए, यूहन्ना पर खोल दिए। ये रूह कुदस हमें ले जाता है। लिखा स्तिफनस को ले गया, और हबशी खोजा लिखा है कि यशाया का सहीफा पढ़ रहा था, तो कहने लगा कि जब तक कोई मुझे समझाए ना, कोई मेरी मदद ना करे, मुझे ना समझाए, मैं नहीं समझ सकता। तो लिखा है कि रूह कुदस ने फिर उसे गाइड किया, स्तिफनस ने। फिर लिखा है कि वो लिखा रूह कुदस से भरकर बपतिस्मा लेकर रूह कुदस से मबूल होकर अपने शहर के अंदर खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हुए चला गया। लिहाजा मुझे और आपको भी भाइयों ये पनीमा स्पिरिट, विंड्स, फोर्स यानी होली स्पिरिट, रूह कुदस दिया गया है। ये हमारी मदद के लिए आया हुआ है, हमारा मददगार है, तसल्ली देने वाला है, सलाहकार है, मशीर है, मशवरा देने वाला है, हमारा एडवोकेट है, हमारी शफायत करता है। और लिखा है कि हमें दुआ नहीं करना आती, वो हमें दुआ करना सिखाएगा। हमें क्या करना आती? कोई बताए हम मुझे दुआ करनी आती है दुआ किसी को रूह कुदस के जरिए से? नहीं आती। कोई बताए रूह कुदस के जरिए से दुआ नहीं करनी आती हमें। लिखा कि रूह खुद आहें भर भर कर क्या करता है? शफायत करता है। हमें दुआ नहीं आती, मगर रूह कुदस क्या करता है? खुद आहें भर भर कर, ये देखिए आहें भर भर कर क्या करता है? शफायत करता है। तो आप देखिए कि रूह कुदस के ताल्लुक से दुआ करना, यहां तो भाइयों दुआ मीटिंग के अंदर नहीं आते लोग, तो दुआ क्या करने आती है? करेंगे। जो नहीं आते उनको भी नहीं आती, और जो आते हैं उनको भी थोड़ी सी आती है रूह कुदस में, वो भी शायद ना ही आती हो। इसलिए खुदावंद के कलाम के अंदर पहला मददगार जो है, लिखा है गतसमनी बाग के अंदर, लिखा है कि यीशु मसीह ने कहा तुम मेरे साथ एक घड़ी भी नहीं जा सके यार, जागो और क्या करो? दुआ करो, शफायत करो, ताकि बोलिए आजमाइश में ना पड़ो। हम दुआ करते नहीं ताकि आजमाइशों में ही पड़े रहें। जब मुसीबतें आती, मुश्किलात आती हैं, फिर दौड़ते हैं। वरना जब हम कहते हैं दुआ मीटिंग में आए, मंगल को इबादत में आए, नहीं आते, कोई बंदा नहीं आता। मगर जब मुश्किलात आती है, दुख आती है, शैतान तंग करता है, दुश्मन, तो फिर भागते हैं। तो भाइयों पहले ही खुदा की हुजूरी में आए ताकि शैतान को मौका ही ना मिले। इसलिए लिखे क्राइस्ट, लिखे कि वहां पर कहता है कि मेरे साथ दुआ करो। और इसी तरह रूह कुदस लिखा कि हमें दुआ करना सिखाता है, और फिर लिखा कि हमारी दुआओं को लेकर क्राइस्ट के पास लेकर जाता है। क्राइस्ट जो हमारा वकील है, वो लिखा है आसमानों पर बाप के पास लेकर जाता है। और फिर इस तरीके से हमारी दुआएं कबूल हो जाती हैं, हम कामयाब हो जाते हैं, हम शुक्रगुजारी करते हैं, क्योंकि रूह कुदस हमारे दिलों को जानता और हमारी जिंदगियों में रहता, हमारे अंदर रहता है, हम पर भेद खोलता है, और हमें क्या करता है? हमारी बातों को लिखे आसमानों तक ले जाता है, हमारी मदद के लिए आया है। इसलिए एक शख्स जो है, कोई मददगार यानी रूह कुदस को जाने ना, रूह कुदस की पहचान ना हो। गौर कीजिए रूह कुदस को कितना जानते हैं, कितना उसके ताल्लुक से इल्म है। ये भाइयों रूह कुदस के तरीके से जानते रहना है, रूह कुदस को लेते रहना है, यानी ये रूह कुदस अब तक हमारे साथ रहेगा। इसलिए होली स्पिरिट हमें दिया गया है ताकि वो हमारी मदद करे, हमारी कमजोरियों में हमें जोर दे, हमें कुव्वत दे, हमें ताकत दे। इसलिए बाइबल में लिखा, मैं बाप से दरखास्त करूंगा, वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहे, यानी रूह हक जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती। तो भाई ये रूह कुदस तो अजल से है। खुदा सलूस की हम बात करते हैं, सुनिए जो मैं कह रहा हूं। खुदा सलूस, बाप, बेटा, रूह कुदस। खुदा का इजहार दुनिया के अंदर जो होता है वो बाप, बेटा, रूह कुदस की वजह से। खुदा एक है, मगर अपना इजहार, अपना जो दिखाता है वो बाप, बेटा, रूह कुदस के जरिए से दुनिया में
भेद खोलता है। तो मैंने पहले बताया कि रूह कुदस जो है लिखा है, इब्तिदा के अंदर लिखा है पानियों की सतह पर जुम्बश करता था। हालेलुया। ये अज़ल से पैदाइश की किताब में लिखा है रूह कुदस। ये भाइयों अज़ल से रूह कुदस था, ये बाप के साथ था। और जब बाप लिखा है जब जमीन आसमान को बनाने लगा तो साथ रूह कुदस वर्क कर रहा है। खुदा का रूह पानियों की सतह पर जुम्बश, बाप के साथ काम करता है रूह कुदस, फिर बेटे के साथ। इसलिए यीशु मसीह ने क्या कहा, ये बदबू है जो मैं निकालता हूं तो रूह कुदस की कुदरत से निकालता हूं। हालेलुया। ये क्राइस्ट ने कहा। इसी तरह रूह कुदस हमें दिया गया ताकि शैतान की फौजों को हम हरा सके, शैतान का मुकाबला कर सके। ये रूह कुदस भेजा गया है, दूसरा मददगार है जो हमारा हेल्पर है। हमारा क्या है, पैराक्लीट है, पैराक्लिटोस है, हेल्पर है, कंफर्टर है, हमें तसल्ली देता है। हमारा काउंसलर है, एडवोकेट है, इंटरसेसर है, एडवाइजर है, प्रोटेक्टर है, सेंट्रेटर है। हालेलुया। मददगार है, हमारी मदद करता है, हमें लेकर जाता है, हमें हम पर गहरे भेद खोलता है। इसलिए रूह कुदस से ममूर होकर हमें खुदावंद की प्रशंसा करनी, उस मददगार को पुकारना है दुआ के अंदर, उसकी सताइश करनी है। और जब हम रूह कुदस को पुकारेंगे तो वो हमारी जिंदगियों में आता, कलाम के गहरे भेद हम पर खोल देता है। हालेलुया। आइए अपने सर को झुकाएं, आंखें बंद कीजिए।